Hi everyone, welcome back to Edu Astro. And today we have another fantastic episode with Nilesh ji progressing on the path for enlightenment. Nilesh ji, it has been a small break where we have come back again, from where we have come back again, and now today we can go ahead with another episode from where we left. Thank you, all the viewers. And I have to let you know if you have any kind of question regarding meditation or any other queries, please let us know. Please give some your comments on the comment section. Uh, so at least we will understand that are you guys following, or you whatever we discussed, that you understood or not. uh, so we have up till now we have recorded like sixth episode. So in last episode we have discussed about the alignment of first three bodies, and it association with an energy function. I have also described about the four pillar of our life, which is dharma, artha, kama, and moksha. We have also now in this episode, I wanted to explain regarding the many meditation methods. So I have divided these methods in three portion. So in first portion, I have to explain that the method which you can do it anytime, anywhere. Second portion, you have to spend at least 1 hour, which is a very active meditation. I'm gonna explain the every stages of those meditation. In third stage, also I have put few meditation which is really like, if you want to really pursue deeper in the spirituality or sadhana, so you have to practice that. So in first portion I have put like little lightweight meditation. In second stages, aggressive one, active meditation. And in third stages, you have to keep silence. But in silence, how you gonna sit in silence? So those all depend upon your first and second stage. Second. Okay, so begin with the first part. So before we start, I would like to mention that, see, all the meditation practice in your life is very important. If you don't want to disturb your routine life, and if you don't have much time, but I would say there is no person in the world which will spend which will take at least 1 hour of time out of his life to improve himself, his own journey, for the reason he was here on this earth. so Correct. so I would highly recommend that if you spend at least 1 hour in your life, that would help you a long way. The only thing you have to put the continuous seamless effort, and Yeah. that continuous seamless effort you have to put very conscious effort. Because I can bet you on that, if you put conscious effort and continuity in your process, you will get the result in 9 months, solid result. 9 months. 9 month, एक 9 महीना होता है, 9 महीने में पूरा बच्चे का बर्थ होता है. So that 9 month is, I'm not asking you about, okay, you अगर आप 2 साल 10 साल 20 साल मेहनत करोगे, फिर आपको अगले अगले टाइम में, नेक्स्ट टाइम ऑफ बर्थ होगा, उस टाइम पे फल मिलेगा. नो, आई एम जस्ट गिविंग यू द मेथड. इंस्टेंट आएगा उसका रिजल्ट, लेकिन 9 महीना करना जरूरी है. अगर Right, 9 महीना भी अगर आप नहीं दे सकते हो, तो फिर उस वो तो फिर आई इट्स उतना तो हेल्प आपको अपने लिए करना पड़ेगा. ओके. Correct. और एक बात,
ये प्रैक्टिस बताने से पहले, अगर आपके घर में कोई ऐसी जगह हो, या आप अलग से रूम अपने मेडिटेशन के लिए हो सके अरेंजमेंट, तो बहुत बहुत अच्छा है। इफ इट इज नॉट पॉसिबल, तो घर का एक कोना आप ले लीजिए, वहां पूरा क्लीन रखिए, साफ सुथरा रखिए, और वो जगह एक्सक्लूसिवली यू हैव टू डू फॉर योर प्रेयर, which is like any kind of prayer, rather doing mantra or any kind of meditation or anything, any kind of rituals you do, right? So वो का एक होना, एक जगह पे आप होना चाहिए। तो उससे क्या होता है, so every day when you sit there, every day when you practice there, so that area will become charged, वो एरिया एक आपकी एनर्जी का सर्कल हो जाएगा वहां। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन ऑल द प्रैक्टिसेस। द as I mentioned you, the first part is the practice, which is you can do anywhere, anytime. There is no preparation you need, or there is no environment to have to create. You can do anytime. Okay, so practice of observation means what? When you observe the thing, जैसे अभी मैं, ये मेरा फोन है, या तो फोन को मैं अगर यहाँ लगा दूं तो मुझे कुछ अंधेरा हो जाएगा, बट अगर इसी चीज को मैं थोड़ा दूर से देखूं, और दूर से देखूं, और दूर से देखूं, तो मुझे एकदम साफ साफ दिखेगा। सो ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि आप जहां भी हो, जिस कंडीशन में भी हो, आपको बस खाली देखना है। आपको हर एक चीज को देखना है। आपके आजू बाजू में पक्षी उड़ रहे हैं, आदमी चल रहा है, आवाज आ रही है, आवाज आई तो उसको कान से उसको सुनो, ऑब्जर्व करो, वो जो आप सुन रहे हो उसको ऑब्जर्व करो। आप कुछ कर रहे हो, कोई बोल रहा है, कुछ जो भी, ऑफिस पे हो, रास्ते पे चल रहे हो, घर में ऐसे ही बैठे हो, घर में भी बैठे हो, तो घर के कमरे में भी कोई नहीं है तो आप छत देख रहे हो, फैन देख रहे हो, जस्ट ऑब्जर्व ईच एंड एवरीथिंग, एवरी टाइम। 24 घंटा यही काम धंधा करो, ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व। उससे क्या होगा पता है? एक आपसे और आपके बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट होगा, गैप आएगा बीच में, एक स्पेस आएगी बीच में। तो वो स्पेस जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, सो यू विल ऑटोमेटिकली अवेयर, आपको अवेयर होना आ जाएगा। आपको अवेयरनेस क्या है उसका स्वाद मिल जाएगा। कि जब भी मैं ऑब्जर्व, मतलब वो ऑब्जर्वेशन में आप उसके साथ एक मत हो जाना, अटैच मत हो जाना, ऑब्जर्व, अलूफ होके ऑब्जर्व करना चीजों को। ये प्रैक्टिस आप 21 दिन मिनिमम करना, तो आपको खुद को पता चल जाएगा वो 21 दिन में। मैं 21 दिन इसीलिए बोल रहा हूं कि मन का नेचर है, माइंड का नेचर है। 21 दिनों में माइंड का पैटर्न है ना, पैटर्न बदलता है माइंड का। इसीलिए कोई भी प्रैक्टिस करो, चाहे वो ध्यान से रिलेटेड हो, चाहे आपको प्रोफेशन के रिलेटेड हो, चाहे कोई आर्ट या उससे रिलेटेड हो, अगर उस चीज में आप 21 दिन बराबर कंटिन्यूअस उसको देंगे ना, तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। आपको 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 खुद को पता चलेगा कि हाँ, ये मेरे लिए फिट हो रही है या नहीं हो रही है, क्या या इससे मुझे कोई फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो वो ऑब्जर्वेशन करने में पांच छह चीजें आपको ख्याल में आएगी। आपका माइंड है ना, शांत होने लगेगा, मन में एक स्टेबिलिटी आने लगेगी, एक एक ठहराव आने लगेगा, आपके बॉडी लैंग्वेज में हड़बड़ी नहीं होगी, ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, ये करना है। क्योंकि आप जब भी आप ऑब्जर्व करते हो ना चीजों को, तो अपने आप शांत हो ही जाते हो। आप हड़बड़ी में ऐसा नहीं देखते, यहाँ देखा, वहां देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा। When you observe, you have to
जब भी आप कुछ किसी चीज को देख रहे हो तो आपका फोकस, आपका ध्यान उधर जाता है। करेक्ट। तो वो जो करेक्ट। हैबिट बनाओगे ना ऑब्जर्व करने की, तो आप अपने से अलग होने लगोगे। ये एक है। अभी दूसरा भाग ऑब्जर्वेशन का यही है, while you observing, don't use the word I, me and mine. करेक्ट। Observe absolutely as a independent entity. जैसे आपने पहली बार बोला था प्रीवियस एपिसोड्स में, यू डिसएसोसिएट फ्रॉम योरसेल्फ एंड स्पीक टू योरसेल्फ इन थर्ड पार्टी। ऑब्जर्व करने के टाइम पर भी आप ऑब्जर्व कर रहे हो, अपने आप को बीच में नहीं ला। थे भी है प्रैक्टिस, बट what I mean to say, word I say word using specifically I, me and mine. So जब भी आप ऑब्जर्व करते हो, अपनी अपनी अपने पास स्कूटर है, गाड़ी है, कुछ भी है आपके पास, ऑब्जर्व, दिस इज ऑब्जर्व लाइक, मैंने क्या बोला, आई, मी और माइंड को बीच में नहीं लाना है। जस्ट ऑब्जर्व एज अ कार। ये कार है, ये कार स्कूटर है, बस एज इज। एज इज। सो फर्स्ट स्टेप में क्या करो, आप ऑब्जर्व करने लो। गाड़ी है, ये है, वो है। आप ऑब्जर्व उस तरह से भी कर सकते हो। मेरी गाड़ी है, मेरा मकान है, मेरा बेटा है, मेरा ये है, मेरा ऑफिस है। सेकंड स्टेज में आप जब भी आप वो ऑब्जर्वेशन में आपको ग्रीप आ जाए, और ये प्रैक्टिस में आपको कंटिन्यूस करनी है, इस ऐसा नहीं कि एक दिन किया, 2 दिन छोड़ दिया। ये आपको मतलब आप जैसे रोज नहाते हो, ब्रश करते हो, खाना खाते हो, तो ये भी एक है, आपकी एक हैबिट बननी चाहिए ऑब्जर्वेशन की। तो वो ऑब्जर्वेशन में आपकी क्रिएटिविटी भी इतनी बढ़ेगी, आपको ध्यान आएगी सब चीजें कि मेरे आजू बाजू में क्या हो रहा है। करेक्ट। आपको एक होश, आपके अंदर एक सबटेल एनर्जी में एक होश होश क्रिएट होगा। करेक्ट। हाँ। और उसके साथ जब भी आप वो आपके ध्यान में, आपके ग्रीप में आ जाए ऑब्जर्वेशन, उसके बाद ये लेके आओ, आई, मी एंड माइंड। माइंड को ऑब्जर्वेशन से बाहर निकाल दो कि ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा मकान है, ये मेरी ऑफिस है, ये मेरे बैंक बैलेंस की चेक बुक है। सब निकाल दो, बस है, सब है एज इज। एज इज। ये थर्ड स्टेज, थर्ड हो गई। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का जो भी आपने बताया कि आपका नाम आप यूज मत करो थर्ड पर्सन। जैसे आपको उससे साथ कोई कुछ है, कोई रिलेशन ही नहीं है। थर्ड पर्सन की तरह अपने को देखो। आपका जो नाम है वो आप नाम लेके ही अपने को ऐसा बोलो। जैसे मेरा नाम है नीलेश, चलो अभी उसको भूख लगी है, नीलेश को ऑफिस जाना है, नीलेश को ये करना है। तो ये आप जितनी जितनी बार अपने नाम के साथ डिसोसिएट होने लगोगे ना, तो वो भी उससे अवेयरनेस बहुत बढ़ेगी। अवेयरनेस तो बढ़ेगी, आपको आपको एक रियलाइजेशन आएगा, एक क्या बोलते हैं, वैराग्य आएगा। वैराग्य, ओके। राग होता है, एक वैराग्य होता है। करेक्ट। अपने आप अलग अलग होने लगोगे। लेकिन ये रोज होना चाहिए, डेली रूटीन में ये चीज होगी ना, तो आप 2-3 महीने में आपके अंदर इतना बड़ा ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा ये कब हो गया। एंड आई कैन गारंटी यू, बैट यू, अगर आप सच में आपको साधना में आगे बढ़ना है, अगर आपको लगता है कि मुझे जानना है कि ये सब क्या है, मैं क्यों यहाँ आया हूँ, मेरा बर्थ किस रीजन से हुआ है यहाँ, व्हाई आई एम हियर, तो ये प्रैक्टिस आप करोगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा इसके अंदर से। आपके लिए साधना में जाने के रास्ते खुल जाएंगे, चारों ओर से रास्ते। और ऐसा नहीं कि जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो आपको अस्तित्व भी आपको हेल्प करेगा। या। जितना अस्तित्व की ओर जाने की कोशिश करोगे, अस्तित्व भी आपको इतनी भेजेगा हेल्प सामने से।
Correct. यू टू जस्ट इनिशिएट। तो ये सारे सूत्र जो भी है, टेक्निक है, साधना में गहरे जाने की है। तो उसका में आप फाउंडेशन स्ट्रांग बना लोगे ना, तो आगे आगे चल के जो प्रैक्टिस मैं अभी बताऊंगा वो करने में बहुत इजी हो जाएगा। फोर्थ फोर्थ चौथी बात है कि होना और होने का बोध। मैं हूं और मेरे होने का बोध होना ही चाहिए हर मिनट। सेल्फ रिमेम्बरिंग बोलते हैं उसको। क्योंकि हम लोग सीधे, अब मैं बोलूं, चलो मैं ऐसा क्वेश्चन करूं, वेयर इज गॉड, परमात्मा कहाँ है? हम परमात्मा को सीधे ढूंढ नहीं सकते। इतना विराट अस्तित्व, कहाँ उसको कहाँ आप ढूंढे? खोजेंगे। लेकिन वो परमात्मा पूरा का पूरा जो अस्तित्व है, भगवान है, जो भी आपको नाम देना है, वो पूरा का पूरा आपके अंदर छुपा है। अंदर, अंदर से। तो आपका जो करेक्ट, होना है ना, आपका जो होना है वो ही परमात्मा है। उसके अलावा कुछ कोई है नहीं परमात्मा अलग से। तो अगर करेक्ट। तुम अपने होने को याद करोगे ना, तो समझ लो तुमने भगवान को याद कर लिया। हर याद कर क्षण, लिया। प्रतिपल अपने होने को भूलना नहीं। होने का मतलब जो भी कुछ कर रहे हो आप फिजिकल एक्ट में, क्योंकि हम अभी फिजिकल है ना, तो आप फिजिकल, वैसे तो उसके लेयर्स है, फिजिकल, माइंड से और इमोशन से। लेकिन अभी अपने को फिजिकल माइंड लेवल पे और इमोशन पे भूल जाओ। अभी खाली फिजिकल एक्ट में अपने होने को याद करो। एवरी राइट। एक्ट यू हैव टू डू अवेयरफुली। तो आपका होना वहां अपने आप मौजूद हो जाएगा। अगर आप होश पूर्वक करोगे चीजें, तो आपका होना वहां मौजूद हो ही जाएगा। उसको अलग से प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं। करेक्ट। तो ये एंड आप, उससे माइंड भी फोकस रहेगा, और माइंड फोकस रहते हुए जब वहां पे रहेगा तो ऑटोमेटिकली माइंड दूसरी जगह जाएगा नहीं, अवेयरनेस बढ़ी जाएगी। और जो चीज करोगे उसमें आपको 100% सक्सेस मिलेगी, क्योंकि आप वही हो ना। एग्जैक्टली। जो भी कुछ एक्ट कर रहे हो, आप एक्ट के साथ हो। आप और हम्म। कुछ भी नहीं सोच रहे हो। अच्छा, एग्जाम्पल करेक्ट। देता हूँ। खाना खाने बैठे हो आप, बराबर? तो हम्म। खाना खाते समय सिर्फ खाना खाओ, हम्म। और कुछ होना चाहिए। ये खाने की एक्टिविटी आप हो जानी चाहिए पूरी। करेक्ट। हम क्या करते हैं, खाने खाने के टाइम पे इसको फोन कर लिया, इससे बात कर लिया, 10 चीजें देख ली, अरे तू वो कर ले, अरे ये कर ले, और खाना खा रहे। तो हमारा ध्यान बट रहा है। करेक्ट। हमारा मन है ना 1000 हिस्सों में बटा है, 1000 से भी ज्यादा। ये तो मैं कम बोल रहा हूँ। ट्रू, वेरी ट्रू। तो ये होने का बोध क्या करेगा, आपके मन के जो हिस्से हैं ना, उसको जो जोड़ते जाएगा। 1000 के करेक्ट। 900 करेगा, 900 के 800, करते 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 फिर मन पूरा एकजुट होके एक जो। जो एक्टिविटी आप कर रहे हो उसी में लीन हो जाएगा। करेक्ट। जैसे वो उसी में लीन हुआ, अवेयरनेस अपने आप पीछे हो जाएगी खड़ी। करेक्ट। तुम अवेयरनेस डायरेक्टली नहीं साध सकते हो। जैसे ही होश करोगे, अवेयरनेस अपने आप आ जाएगी। तो ये और ये सारी चीजें आप विदाउट प्लेस और विदाउट एनीथिंग कहीं भी कर सकते हो, कहीं भी। करेक्ट। दूसरी एक चीज, दिन में 10-15 मिनट ऐसे निकाल लो जिसमें आप कोई भी एक्टिविटी या कुछ एक्सरसाइज कुछ भी करना चाहो, वो मोमेंट आपकी स्लो हो जाए। हम्म। आपने बताया ऑफिस था धीरे कर। ऑफिस का भी काम कर रहे हो ना, देखो मैं यहाँ कोई बाउंड लिमिट नहीं कर रहा हूँ। ऑफिस का भी काम कर रहे हो ना, कंप्यूटर पे बैठे धीरे धीरे करो। आपका काम भी होते रहेगा, और ये 15 मिनट की आपकी वो भी हो जाएगी, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। करेक्ट। खाना खाने बैठे हो ना, धीरे से कौर उठाओ, देखो कौर मुंह की तरफ जा रहा है, खाओ। खाते समय कौर को 15 बार, 20 बार, 25 बार च्यू करो। चबाओ। रस बना दो पूरा कौर का। तो रस बनाने में आपका ध्यान भी लगा रहेगा, होश भी बना रहेगा, और आपका खाना जो पचता है ना, पचने में आसानी हो जाएगी। आसानी हो जाएगी। करेक्ट। ये जो 15 में दो, ये मैं आप दो ये काम, जो तीन काम एक साथ हो गए। एक साथ हो रहे हैं, तो खाने में आपकी शांति हो जाएगी। खाने में कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। खाने के साथ आपका मौन भी हो जाएगा। मौन से आप खा रहे हो,
नहीं तो हम क्या करते हैं, खाने में हर 1000 बार तो बोलते हैं, ना खाने करेक्ट, में ध्यान, ना बोलने में ध्यान, ना कुछ भी करने में ध्यान हमारा। एग्जैक्टली। ध्यान होना बहुत जरूरी है हर एक चीज में, चाहे वो बाहर की एक्टिविटी करो, चाहे आप अंदर की एक्टिविटीज, ध्यान होना जरूरी है। तो ये वो आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। वो 15-20 मिनट आप किस काम के लिए स्लो मूवमेंट में करोगे, खाने स्लो के मूवमेंट में लिए करें। या योगा कर रहे हो, तो उसमें भी आप स्लोली आपको आपके शरीर को बैंड करते 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 जाओ, स्लोली उठाओ, स्लोली एक्टिविटी करो, हो जाएगा अपना। तो आपका योगा भी हो गया और ये प्रैक्टिस भी हो। करेक्ट। दूसरी दूसरी एक बात, 10 मिनट बैठना सीख लो स्पाइन इरेक्ट करके। सीधा करते 5 मिनट 7 मिनट बैठना सीख लो, कहीं भी, ऑफिस में हो, ऑफिस में आपकी कैबिन है, 5-7 मिनट 10 मिनट नीचे जमीन पे बैठ जाओ, स्पाइन खड़ी करके आंख बंद कर बैठ बैठ जाओ। सीधे बैठना, स्टिलनेस में बैठना, आप आपके माइंड के ऊपर सीधा असर करता है। हम्म। मैं आपको उसका रिलेशन आपने बताता हूँ। बताया था। अगर आपकी बॉडी स्टिल होगी, हम्म। माइंड अपने आप स्टिल होने लगेगा। यही चीज हम माइंड से भी कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत मुश्किल होगी। मुश्किल होगी। तो माइंड को स्टिल करना, और फिर इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। वेरी डिफिकल्ट मीन्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो हम लोग इजी है, हम लोग फिजिकल है, तो हम लोग फिजिकल लेवल में ही होके अगर 10 मिनट रोज प्रैक्टिस करें स्टिलनेस की, तो वो प्रैक्टिस से फायदा क्या होगा कि जब भी आप गहरे ध्यान के मेडिटेशन में जाओगे ना, तो आपको उसका अंदाजा हो जाएगा कि स्टिलनेस क्या है। क्या है? करेक्ट। कि माइंड भले घूमता रहे, बॉडी तो स्टिल रखो। तो करेक्ट। जैसे ये हाथ में पेन है या कोई प्लास्टिक का है, मैं एक हाथ से पकड़ के उसको हिलाता रहूं, तो दूसरा एंड तो हिलते रहेगा, लेकिन कब तक हिलेगा? करेक्ट। एक उसका होगा, ड्यूरेशन होगा ना, वो धीरे धीरे करेक्ट। धीरे करके अपने आप वो स्टिल हो जाएगा, क्योंकि ये वाला एंड मेरा स्टिल है, स्टिल इसको है। मैं हिला नहीं रहा हूँ। करेक्ट। तो इसका मतलब जो फिजिकल बॉडी अगर आपकी स्टिलनेस में होगी, तो माइंड धीरे 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 करके स्टिल होने लगेगा, और स्टिल आपका होने लगे। शरीर और मन एक अलाइन होने लगेगा। और शरीर और मन अलाइन हो गया तो मेडिटेशन में जाने का, ध्यान में जाने का रास्ता खुल गया। यही सुपर। यही तो करना है। कितनी भी विधि करके अंत में तो हमको यही आना है ना, स्टिलनेस में आना है। विधि करेक्ट। तो, प्रैक्टिस तो बहाना है कि हमारा करेक्ट। हमारा मन सीधे सीधे तरीके से मानेगा नहीं। मैं बोलूँ यहाँ से पकड़ लो, तो नहीं मानेगा, वो उसको उल्टा ही जाना है। क्योंकि मन करेक्ट। मन का नेचर, अहंकार का नेचर है, कुछ हार्ड काम करो, कुछ ऐसा करो इम्पॉसिबल चीज, तो अहंकार में करेक्ट। उसको मजा आता है। तो ये इम्पॉसिबल चीज आपको बैठना है, स्टिलनेस आपके लिए इम्पॉसिबल, जो बैठता नहीं है रोज, इसके लिए बात इम्पॉसिबल हो जाएगी। तो करेक्ट। अगर वो 5 7 10 मिनट से बैठना शुरू करे, तो तब तक उसकी प्रैक्टिस भी होने लगेगी, और फिर अगर उसको इंटरेस्ट आने लगा, तो उसको 15 20 25 मिनट जा सकते हो अपने आप। तो ये जो सारा करेक्ट। पूरा है, ये है ना सेट ऑब्जर्वेशन का, ऑब्जर्वेशन विदाउट आई मी एंड माइंड, देन प्रैक्टिस ऑफ योरसेल्फ, अपने नाम 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 बोल के काम करो, कि आज करेक्ट। कबीर को आज ऑफिस जाना है, कबीर को भूख लगी है, कबीर को ये करना है, वो करना है, उससे ये, फिर सेल्फ रिमेम्बरिंग, फिर और एक चीज है, स्वीकार भाव। स्वीकार भाव, हैपन, जो हैपन है ना, आप उसको कहीं से भी अलग नहीं कर सकते हो। हैपन तो इजनेस, हैपन मीन्स इजनेस, दैट विच इज, उसको आप अपने से अलग नहीं कर सकते हो। अब करेक्ट। अब बोल के देखो, झाड़ है, पहाड़ है, नीलेश है, ये है, मेरी गाड़ी है, मेरा मकान है, मेरी बीवी है को निकाल सकते हो? आकाश है, परमात्मा है, पशु है,
देव है को निकाल के दिखाओ, है से Not अलग possible. होके दिखाओ। Not possible because that is the omnipresent truth. That is the truth. तो वो जो है को आप स्वीकार लो, जो होल एग्जिस्ट है, Acceptance. जो है ना, है को आप जैसे ही आप है को स्वीकारने लगोगे ना, दुख है, उदासी है, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया ना, तो दुख अपने आप वैनिश हो जाएगा। Vanish हो जाएगा क्योंकि आप उसको हवा नहीं दे रहे हो, उसको भगवान नहीं बना रहे। As simple as that, right? आप एक्सेप्ट कर रहे हो ना उसको एज Accept इट कर इज, रहे हो। विदाउट एनी जजमेंट, आप सभी चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हो। Correct. स्वीकार भाव, तथाता, बुद्ध ने कहा है, तथाता, Correct. उसको स्वीकार लो। सुख है Acceptance. तो इसमें क्या होगा पता, बैलेंस आने लगेगा। सुख में Correct. आप उछलने नहीं लगोगे, दुख में आप नीचे नहीं डिप्रेशन में जाओगे। नहीं जाओगे। सुख और दुख आपको बैलेंस बना के रख देगा। और Correct. यही तो साधना की यही है, हर एक चीज में बैलेंस। Balance. आपका घड़ी का पेंडुलम ना वहां गया ना वहां गया, आप बीच में खड़े होके सुख को भी देखोगे, दुख को भी देखोगे, हंसी को भी देखोगे, खुशी को भी देखोगे। Correct. तो एक इतना सम भाव आ जाएगा ना, समता आ Some जाएगी। balance. हिंदी का वर्ड है ना, समाधि, समधि। आपकी जो Correct. बुद्धि मतलब क्या, बुद्धि, बुद्धि। इंटेलेक्ट में समता आ गई। Correct. ना इंटेलेक्ट वहां जाती है ना यहाँ जाती है। Yeah. तो ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, स्वीकार भाव, वर्ड तो बहुत छोटा है, लेकिन इसका जो मीनिंग अभी मैंने समझाया ना, वो बहुत बड़ा है। मिरेकल, इट विल चेंज योर लाइफ। हजारों That की I have. लाइफ बदली है, मेरी खुद की लाइफ बदली है उससे। ये जो प्रैक्टिस मैंने बताई वो मैंने खुद की है, अपने अपने जीवन में मैंने उतारी है और दूसरों ने भी उतारी है। तो इसकी मैं श्योरिटी देता हूँ आपको, अगर ये करोगे आप, आपको बेनिफिट मिलना मिलना तय है। इसको भगवान भी नहीं ना बोल सकता है। वो क्यों ना बोलेगा? क्योंकि इसमें लॉजिक है। अस्तित्व क्यों ना बोलेगा? उसको तो खुश होगा कि मेरा एक बेटा मेरे घर आ रहा है वापस, एग्जैक्टली। मेरा एक बेटा मेहनत कर रहा है अपने अपने घर को आने को वापस। तो भगवान तो अस्तित्व या परमात्मा जो भी, वो आपको हेल्प करेगा, करेक्ट। वो आपको करेगा नहीं। अच्छा, ये तो हो गई। अभी दूसरी दूसरी प्रैक्टिस है, ये थोड़ी एक्टिव मेडिटेशन है। मैंने कहा कि सक्रिय ध्यान इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू गो डीपर इन द मेडिटेशन। ध्यान में गहरे जाने के लिए कैथारसिस होना बहुत जरूरी है। द वे आज आज के प्रोस्पेक्ट में हम लोग जी रहे हैं, एक ह्यूमन माइंड जी रहा है, इतना कुछ बढ़ता है वो रोज, तो उसको खाली भी करना पड़ेगा उसको। तो ये सक्रिय ध्यान क्या करेगा, आपको खाली करते जाएगा, भीतर से खाली करते जाएगा। ये 1 घंटे का ध्यान है। 1 घंटे का मतलब मेरा रैम खाली हो रहा है यहाँ पे और अच्छी चीजें डालने की जगह बन रही है, पर 1 घंटे का ध्यान। 1 घंटे ये आपका, मैंने जो बोला था ना, थर्ड पार्ट, थ्री हम्म, थ्री पोर्शन में बोल रहा हूँ। जो फर्स्ट पोर्शन बोला है वो आप कहीं भी हल्का फुल्के तरीके से कर सकते हो। कर सकते हो। अगर उसमें आपको ग्रीप आ गई, देखो दुनिया में हर एक अलग अलग लोग हैं। किसी को इसमें इंटरेस्ट होगा, किसी को सक्रिय ध्यान में इंटरेस्ट होगा, किसी को और कुछ करने में इंटरेस्ट होगा। तो मैं ये आदमी की जो मानसिकता है, मेंटालिटी, उसके हिसाब से बोल रहा हूं। अगर किसी को सक्रिय ध्यान में ज्यादा रुचि नहीं है, तो वो जो फर्स्ट वाला सेट है उसको भी वो वाला करेगा। कर लो। तो करते करते वो एक दिन उसको सोचेगा अभी मुझे सक्रिय ध्यान करना है, करेक्ट। अभी मुझे गहरे जाना है। तो ये जो दूसरा पोर्शन है वो गहराई के लिए है। समझा। अभी वो आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, जो भी कोई सुनेगा देखेगा,
आपको सोचना है वो कि आपको करेक्ट, आपको ध्यान में कितने गहरे जाना है। करेक्ट, वो मैं किसी को बता नहीं सकता या किसी की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। वो हमारी जिम्मेदारी हमको खुद उठानी होगी। तो करेक्ट। पहला सक्रिय ध्यान है, उसका नाम है डायनामिक मेडिटेशन। डायनामिक मेडिटेशन। डायनामिक ओके। मेडिटेशन। ये सारे ध्यान है ना, मैंने ओशो की प्रैक्टिस से ही मैंने सीखे हैं। हम्म। तो थोड़े बहुत मैंने अपने हिसाब से, मुझे लगा मुझे यहाँ थोड़ी चेंज करनी चाहिए, तो अपनी अपनी फितरत, अपनी जो प्रकृति के हिसाब से मैंने थोड़ा बहुत मैंने चेंज। लेकिन ये जो डायनामिक मेडिटेशन है वो एज इट इज मैं आपको बता रहा हूँ, और वैसा ही करना चाहिए आपको। ओके। उसकी उसकी लिंक आपको कहीं भी यूट्यूब पे मिल सकती है। लेकिन अगर उसके बारे में आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे लिख सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। डायनामिक मेडिटेशन 5 स्टेज है। हम्म। फर्स्ट स्टेज ब्रीदिंग एक्सरसाइज, कियोटिक ब्रीदिंग, मतलब मैडनेस कैसे वाली, भी कर। कैसे भी करके मैडनेस वाली ब्रीदिंग। और ये ध्यान बैठे बैठे नहीं करना है, खड़े खड़े। खड़े होके करना है। क्योंकि जब भी आप ब्रीदिंग क्रियोटिक करोगे कि आपकी हर एक बॉडी मूवमेंट हिलेगी, आपका शरीर पूरा साथ देगा उसके अंदर। ओके। जो ब्रीदिंग आप करोगे, या लाइक एग्जांपल देता हूँ, ये फोर्स आना चाहिए ब्रीदिंग में। करेक्ट। तो ये फोर्स ब्रीदिंग में आप बाहर फेंको, उच्छ्वास करो, हम्म। रेचक रेचक करो। अब प्राणायाम में होता है ना, पूरक, रेचक, कुंभक। करेक्ट। फेंकना है बस, आप अंदर फेंक लेने दो की बाहर। सोचना मत। फेंको बाहर। तुम्हारी जितनी ताकत है ना, तुम्हारा पेट पूरा खाली कर दो। फेंको फेंको। इंजन कैसे चलता है? करेक्ट। 10 मिनट पागल, ऐसे ऐसे पागल होता हूँ। 10 मिनट खाली ऐसे ही सोचो आप, वो कहो, श्वास ही श्वास हो गए हो 10 मिनट। करेक्ट। ये बहुत मुश्किल है करना, लेकिन करना। लेकिन अगर ये आप कर लोगे ना, आपको मैं आपको गारंटी लिख के देता हूँ, विद इन 3 मंथ्स आप खाली हो जाओगे, खाली। आप मेडिटेशन शांत बैठने के लिए प्रिपेयर, 100% प्रिपेयर हो जाओगे। 3 मंथ में आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी पूरी। कि 3 महीना अगर करने को आप कमिटमेंट देते हो अपने को, मैं आपको गारंटी देता हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑन योर वे। 100%, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं। सुपर, सुपर। आई माई सेल्फ, मैंने 16 साल पहले ये प्रैक्टिस 1.5 साल की है, 1.5 साल कंटिन्यूअस। उस 16 साल पहले, 1.5 साल की, उस टाइम पे मैंने आई लॉस्ट माई 16 पाउंड। एंड उस दिन से आज तक मेरा वजन न 2 पाउंड बढ़ा है, न 2 पाउंड घटा है। एक विंडो है 155 पाउंड की, 153, 154, उतना ही है। मैं कितना भी खाऊं, कितना भी उपवास करूं, कुछ भी करूं, सेम बॉडी मेरा ऐसा ही ऊर्जा से भरा हुआ। सुपर। करो आप बस। मेरा मेरा बोलने का मतलब है, 3 महीने अपनी लाइफ का इस 1 घंटा आप अपने लिए दे दो। सो ये फर्स्ट फर्स्ट स्टेप, ब्रीथिंग एक्सरसाइज। सेकंड स्टेप कैथारसिस है, कैथारसिस। ये डायनामिक मेडिटेशन का म्यूजिक भी है। तो म्यूजिक के लिए मैं आपको लिंक ये एपिसोड में नीचे डाल दूंगा। आप म्यूजिक का वो लिंक से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। और म्यूजिक से करोगे तो शुरू शुरू में आपको अच्छा लगेगा, फिर म्यूजिक भी छोड़ दो, अपने आप सब हो जाएगा। ओके। दूसरा, जब भी आपका फर्स्ट स्टेज है, जो कैथार्स, जो ब्रीथिंग का मैंने बोला, वो 10 मिनट में क्या होगा, आपकी बायो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पूरे शरीर की एक्टिवेट हो जाएगी। जो ओके। हिडन एनर्जी भी छुपी है ना, वो दस वो सब आ मिनट जाएगा। में पूरी एक्टिव हो जाएगी। इतनी एक्टिव हो जाएगी कि आपको फिर दूसरा जो स्टेप मैंने बोला, कैथारसिस, आप एक्ट शुरू में 1-2 मिनट एक्ट करना शुरू कर देना। हंसना, चिल्लाना, गाना, रोना, उछलना, कूदना, हवा में मारम फाटम, जो आपको जो दिल में आए, जो आंख बंद रखना। ये चारों चारों स्टेप में आंख आपकी बंद रखना। ओके। कैथारसिस में जो दिल में आए वो करना। गाली बकना हो, बुरा भला जो करना,
आपके भीतर जो कचरा है ना उसको बाहर फेंक गॉट देना इट। बाहर। 1-2 मिनट में क्या होता है, आपको एक्ट करना पड़ता है कि मैं पागल हो गया हूँ, उस ऐसा एक्ट करना। पागल कैसे होता है? पागल को खुद को पता नहीं होता ना वो क्या बोल रहा है, क्या एक्ट कर रहा करेक्ट। है, कुछ कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, कुछ भी पता नहीं ना। तो आप शुरू-शुरू में एक्टिंग कर लेना। वो जैसे ही वो एनर्जी आपको पकड़ेगी ना, आपके भीतर से निकलने लगेगी चीज़ें अपने आप। आपको खुद को पता नहीं चलेगा साला मैं ये सब क्या कर रहा हूँ। लेकिन करेक्ट। लेकिन आपको आपका पीछे होश है ना, वो जो मैड है, पागल है, उसको होश नहीं है। हम्म। कहाँ एक्ट को स्टॉप करना है। लेकिन आपको तो करेक्ट। होश है, तो 10 मिनट की करेक्ट। कैथारसिस में आप 10 मिनट में चुप हो जाओगे। तो 10 मिनट वो कैथारसिस कर ली मतलब कचरा बाहर निकाल दिया। थर्ड थर्ड स्टेप आएगा उसका साउंड है हू, हो। हू HOO हू। हु। ओके। आप जरा हु। जोर से बोलो हू। हु। देखो कहाँ समझ में आपको आया। आया, उसका इफेक्ट कहाँ इधर आया? से। नाभि इधर पे, से। नाभि नेवल पे। पे, नेवल पे देखो, वापस करो हू। करेक्ट। हु। करेक्ट, सीधा नेवल यहीं पे आ रहा है इन पर। नेवल है ना, तो हम्म। नेवल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेवल के नीचे कुंडलिनी एनर्जी छुप सोई पड़ी है। करेक्ट। तो ये 10 मिनट हु करके क्या करेंगे हम लोग, और हैमरिंग करते हैं, कुंडलिनी एनर्जी को हैमर कर रहे हैं, हैमर करते जगाने हैं। के लिए। हु 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 हु, हैमर कर रहे हैं जगाने के लिए। फर्स्ट मार्शल आर्ट्स में भी तो यही कराते हैं। जब वो एक्सरसाइज करते हैं मार्शल आर्ट्स में भी तो यही कराते हैं। इस तो जगह पे इम्पैक्ट कराते हैं। कहीं से मेक भी सेंस। लेकिन वो जो आवाज आता है ना, वो आवाज करेक्ट। का हैमर नाभि पे होता है। नाभि पे होता है। मार्शल करेक्ट। आर्ट इज मार्शल आर्ट्स इज आल्सो वे ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन। आपके करेक्ट। दिमाग को कंसंट्रेट, दिमाग को एक कॉन्सेंट्रेट। दिशा देनी है कि आप कितने ध्यान में हो मार्शल आर्ट्स में, कितने अवेयर करेक्ट। होते हो। क्योंकि मार्शल आर्ट्स करते समय एनिमी कहाँ से अटैक करे, क्या करे, यू हैव टू बी 100% अवेयर, राइट? एग्जैक्टली। सेल्फ अपने को करने के लिए, डिफेंस करने की, तो वो फोर्स है ना हु। अभी ये हु है ना, वो सूफी मंत्र है, ओके। अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह हो। अल्लाहू। तो हाँ, एक्चुअली करेक्ट। तो ये जो ओशो ने जो टेक्निक बनाई उसका जो चारों उसकी ये जो ओशो ने पूरी टेक्निक इतनी ब्यूटीफुली मैनेज बनाई है कि मॉडर्न ह्यूमन बीइंग के लिए ये टेक्निक वरदान है। हम्म। ये चेंज हिज लाइफ 360 डिग्री अगर वो करे तो। करेक्ट। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज यो अपना आपका प्राणायाम हो गया। करेक्ट। सेकंड एक्सरसाइज में आपका गार्बेज निकला। करेक्ट। थर्ड थर्ड स्टेज में आपने हु मंत्र का उपयोग किया, वो आपकी करेक्ट। कुंडलिनी को अवेक कर रही है। करेक्ट। फोर्थ स्टेज आया, स्टॉप हो जाओ 10 मिनट के लिए। क्योंकि ओके। 30 मिनट आप कितनी एनर्जी डालोगे फिजिकली। सोचो आप करेक्ट। 10 मिनट ब्रीद करो, 10 मिनट हम्म। कैथारसिस करो, 10 मिनट हु करो, आप एग्जॉस्ट हो हम्म। जाओगे, एग्जॉस्ट। करेक्ट। पहले 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 जो बिगिनर जो नया नया शुरू करता है ना, वो 10 मिनट तक पहुंचने को मुश्किल होता है। लेकिन 2-3 दिन में आपको 10 मिनट तक पहुंच जाओगे आप। पहुंच जाओगे। लेकिन जो करेक्ट। यंगस्टर होता है, यंगस्टर में हम्म। कितनी एनर्जी होती है। एनर्जी होती है। करेक्ट। तो सो वो और ये एनर्जी आप खराब या अनएक्टिव एनर्जी आप बाहर फेंक दोगे ना, तो आप इतने शांत हो जाओगे, काम हो जाओगे, आपकी क्रिएटिविटी पे उसका असर होगा। सो वो 30 करेक्ट। मिनट्स का ये 30 मिनट्स की ये मेहनत, आपको फोर्थ स्टेज में आप चुपचाप साइलेंस खड़े हो जाओ तो हम्म। अवेयरनेस उतरेगी आपके अंदर। क्योंकि वो ऊर्जा आपने इतनी इतनी जनरेट कर ली ना 30 मिनट्स में, कितनी ऊर्जा जनरेट कर ली, तो जाएगी कहाँ वो ऊर्जा? करेक्ट। ऊर्जा तो अपना करेगी ना काम। तो बस उस ऊर्जा को भीतर देखो, क्या क्या कर रही है, देखते रहो 10 मिनट। और फिर लास्ट स्टेज वेरी साउंड वेरी स्वीट म्यूजिक है, वो आपको एकदम रिलैक्सेशन में लेके जाएगा। अगर आपको सोना है तो लेट जाओ, कर लो और पूरे रिलैक्स।
और जस्ट ग्रेटिट्यूड हो गया आपका, पूरे रिलैक्स। तो ये म्यूजिक बहुत अच्छा है। ये मेडिटेशन, जो डायनामिक मेडिटेशन के साथ म्यूजिक का है ना, वो है ना, वो बहुत ही अच्छा है। तो मैं बना दूंगा, ये डाल दूंगा लिंक, आप उसको भी यूज कर सकते। बाकी जो ओशो के जो प्रैक्टिस करते हैं उन्होंने, उसको तो सबको पता है ये क्या है। जो नहीं करते, जो करना चाहते हैं, और ये सारे सारे स्टेजेस में अवेयरनेस को साथ में रखना। जब भी आप ब्रीथिंग कर रहे हो ना, तो मैंने क्या बोला था, ऑब्जर्व करना, करेक्ट। ब्रीथिंग हो रही है। जब राइट। भी कैथारसिस करते हो, ऑब्जर्व करना, कैथारसिस हो रहा है। अवेयर, पीछे जो ऑब्जर्व कर रहा है ना, जो उसको उसको भी ध्यान में रखते चलना। तो ये बाकी अभी मेरे ख्याल से टाइम हो गया के कबीर हाँ, जी, के हम हाँ, आज का टाइम हो गया है। सो हाँ, हम लोगों को वी शुड टेक द लास्ट टेक्निक इन द नेक्स्ट एपिसोड। अभी तो बहुत टेक्निक है, और मेरे पास 10 टेक्निक है। अभी एक ही टेक्निक इतना टाइम गया है। We will go one by one. Yeah, we will go one by one. Okay. And all the viewers, again, if you have any question, please drop in the comments section. I will help you. I will give you all the answer, whatever I know, whatever I understand. Thank you so much. Perfect. Thank you, Nilesh ji. Thank you, everybody. We will see you next week. Take care. Bye bye.